Hello students, I am chemistry teacher Ravish Misra. We will discuss chapter periodic properties which is related to classification of elements in periodic table. Periodic properties. Periodic properties in the periodic table. Already we are already know in class, already discussed in class 10th what is the periodic table, why need the periodic table. So we will discuss about the periodic properties. First periodic properties is ionization. Ionization enthalpy. Ionization enthalpy oblique energy oblique potential. What is the ionization enthalpy, ionization energy or ionization potential? There is the some atom like sodium, magnesium. Atomic number of sodium is 11 and atomic number of magnesium is 12. If the electronic configuration of sodium atom, this 1s2 on the basis of SPDF, 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s1. How many cells present on the sodium in the sodium atom? 1, 2, 3. Cell represent the number. So there is 1 cell, 2 cell and 3 cell. This is the nucleus. In the nucleus, neutron plus proton are present, and in the outermost electrons revolving on it, around it, according to Bohr model. In the nucleus, neutron and proton are present. Neutron is neutral and proton is the positive charge. Okay. Electron are revolving around the nucleus. So nucleus, attraction force of nucleus on that electron, on outermost electrons. So that is the ionization. We will discuss ionization enthalpy, ionization energy or ionization potential. The energy required to remove an electron from the outermost cell of the isolated gaseous atoms. This is the sodium atom. 11th electron is the outermost electrons. 11th electron present in outermost cell, 1 cell, 2 cell, 3 cell. So outermost electron is this electrons. So force of attraction of the nucleus on that electrons. So we remove this electron, the energy is required to remove, the energy is required is known as ionization enthalpy. Okay, ionization enthalpy, the energy required to remove an electron from the outermost cell of the isolated gaseous atom is known as ionization enthalpy. Ab in the periodic table divided into group and period. तो what is the variation of ionization enthalpy? मतलब ionization enthalpy means आयनन ऊर्जा, आयनन enthalpy और आयनन विभव का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएं या लेफ्ट टू राइट जाएं. अगर हम बाएं से दाएं कहाँ जाते हैं? पीरियड में जाते हैं. और टॉप टू बॉटम कहाँ जाते हैं? ग्रुप में जाते हैं. मीन्स वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम इज नोन एज period. Already know, all are know. Okay, so if we ionization enthalpy, variation of ionization enthalpy in group. Variation of ionization enthalpy in the group. In the group, this is the
if we go from top to bottom in that is vertical column, तो होता क्या है, जैसे सपोज दैट हमने फर्स्ट ग्रुप का ले लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, दैट इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, दिस इज द एल्कली मेटल, एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55 and 87, this is the alkali metals. So if we go from top to bottom, what is the change in the ionization enthalpy, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s1, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s1। हाउ मेनी सेल आर प्रेजेंट? 2। यहाँ कितने सेल है? 2 सेल है। यहाँ कितने सेल है? 1 2 3, देयर आर 3 सेल आर प्रेजेंट। तो इफ वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम कंटिन्यूसली, number of cell increases, number of cell increases, here is 2 cell, in the case of lithium here is 2 cell, and in the sodium here is 3 cell, there are 3 cell. So the distance, this is the nucleus and this is the nucleus, outermost electron and outermost electron present on the outermost cell, this distance is the atomic radii, already know, you all know. This is the atomic radii, distance between the nucleus and outermost cell is known as atomic radii. Is it clear? अब to remove the outermost electron निकालने के लिए हमने क्या बोला कि लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा? हमेशा आउटरमोस्ट सेल में रहेगा, ठीक है। उसको निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या कहलाएगी? वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो कहलाएगी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या वो आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनन। द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम्स। तो इस इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है। इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अब एक्चुअली में होगा क्या कि इफ वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये साइज क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ रही है कि यहाँ 2 सेल है तो ये साइज इतनी है, यहाँ 3 सेल हो गए साइज बढ़ गई। इन द केस ऑफ पोटेशियम नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गए तो साइज क्या हो गई? और बढ़ गई। अगर साइज बढ़ेगा, क्या साइज मीन्स एटॉमिक रेडियाई अगर बढ़ेगी तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस है, फोर्स एक्चुअली में डिपेंड करता है 1/r² पर। इफ r मीन्स एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई परमाणु त्रिज्या अगर ज्यादा होगी तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। और किसका फोर्स है ये? एक्चुअली में फोर्स किसका है? जो फोर्स है ये अट्रैक्शन फोर्स है ऑफ द न्यूक्लियस, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का लगता है, क्योंकि न्यूक्लियस पे एक्चुअली में होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है कि निगेटिव को अपनी तरफ, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और हम बाहर से बैठे हैं उस इलेक्ट्रॉन को हम अपनी तरफ से निकाल रहे हैं, तो हमारी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए तभी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रिएट होगी, अदरवाइज आयनाइजेशन एंथैल्पी डज नॉट एग्जिस्ट। भाई इस पर 2 फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक हम यहां बैठ के इस इलेक्ट्रॉन को, इट मींस यू या मी, या हम है या तो तुम हो, इस ये जो है इस इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर रहे हो? पुल आउट कर रहे हैं, और इधर न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन को पुल आउट कर रहा है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के एग्जिस्टेंस के लिए किसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए? इसकी। भाई ये आप निकालोगे तभी तो एनर्जी लगेगी आपकी, और आपकी जो एनर्जी लगेगी वही कहलाएगी क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब ये बताओ इस केस में ये साइज कम है, साइज कम है, अगर साइज कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज्यादा होगा, न्यूक्लियस बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो हमें मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों केस में यहां हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बट इन दैट केस मींस सोडियम,
देयर आर 3 सेल्स, नंबर ऑफ सेल बढ़ गए तो डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। अगर डिस्टेंस बढ़ गई, देखो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स इसका जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स था उस इलेक्ट्रॉन पर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कम हो गया, तो हमें यहां बैठ के इस इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करना चाहते हैं, तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? तो वी कैन सी, हम क्या देख रहे हैं कि इफ वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज कंटिन्यूअसली। व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, so atomic size increases. Number of cell increases, so atomic size increases. If atomic size increases, then the force of attraction, nucleus का जो attraction force है, force of attraction on the last electron decreases, so less energy is required to remove the electrons. Any confusion? जैसे suppose that ये आप क्लास में, अगर हम क्लास में टीचिंग कर रहे हैं, तो सपोज दैट आई एम द न्यूक्लियस, आई एम द न्यूक्लियस एंड यू आर वन स्टूडेंट्स बिहेव एज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। भाई हम न्यूक्लियस हैं और एक स्टूडेंट जो बैठा है वो क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो हमारा फोर्स उस स्टूडेंट्स पे अगर ज्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियस का फोर्स अट्रैक्शन हमारा ज्यादा होगा, तो उस स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? और अगर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस स्टूडेंट्स पे क्या हो गया, कम हो गया, मतलब स्टूडेंट्स मींस इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन हमसे दूर चला गया, हम है न्यूक्लियस, दूर चला गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड मी, मतलब मेरे बीच क्या हो गया, कम हो गया। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कम हो गया उस स्टूडेंट्स पर, तो उस स्टूडेंट्स को क्या किया जा सकता है, लेस एनर्जी देकर कोई बाहर से क्या कर लेगा, पुल आउट कर लेगा। तो सेम सिचुएशन इन दिस केस। एनी कंफ्यूजन? तो वी कैन सी, हम देखते हैं क्या कि इफ वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप, the ionization enthalpy decreases continuously. Why? Because number of cell increases, number of cell increases, so atomic radii increases, hence atomic radii increases, then the force of attraction of the nucleus decreases, less energy is required to remove the electrons. हमें लगता है कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, हमने क्लासरूम का एक एग्जाम्पल बता दिया। ठीक है, तो ये तो वेरिएशन आयोनाइजेशन एंथैल्पी का है ग्रुप में। अब हम पढ़ेंगे किसमें, पीरियड में। Variation in the period. Variation in the period. पीरियड में क्या वेरिएशन होता है? एक्चुअली में मान लो सेकेंड पीरियड हम ले लें, सपोज दैट सेकेंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। वेरिएशन इन द पीरियड्स, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. These are the second period element. Atomic number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Go from left to right. It means in period. तो इसमें होता क्या है एक्चुअली में, एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, कांस्टेंट। नंबर ऑफ सेल देख लो आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, 1s2
2s1 2 सेल, 1s2 2s2 2 सेल, 1s2 2s2 2p1, तब भी 2 सेल, 1 2 नंबर क्या दिखाई दे रहे हैं, 1 2 1 2 1 2, 1s2 2s2 2p2, इट मीन्स एंड सो ऑन, इट मीन्स नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है। इसमें अगर हम जैसे टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ सेल क्या होते थे, इंक्रीज होते थे ग्रुप में, लेकिन यहां हम पीरियड में जब जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या है, कांस्टेंट है, 2 सेल 2 सेल 2 सेल 2 सेल एंड सो ऑन। तो जब नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है तो होगा क्या कि एटॉमिक साइज कंटिन्यूअस डिक्रीजेस। इफ एटॉमिक साइज मींस एटॉमिक रेडियाई कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, देन अकॉर्डिंग टू एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। If R is decreases, then force of attraction increases. Okay? अब force of attraction means nucleus का force of attraction increase हो रहा है, तो हमें large energy is required to remove the electrons. Suppose that वही example हमने जो अभी क्लास में बताया कि जैसे suppose that I am nucleus, you are the outermost electrons. हम nucleus हो, तुम क्या हो, electrons हो। जैसे हमारे और तुम्हारे बीच में क्या डिस्टेंस कम होती जाएगी, हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम पर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब जैसे जो पीछे बैठा है स्टूडेंट्स क्लास में, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टीचर का क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। अरे भाई जो पीछे बैठता है, छिप के बैठता है, आना नहीं चाहता आगे, उस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा टीचर का कम होगा, क्योंकि उसके डिस्टेंस के टीचर और स्टूडेंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ज्यादा है। तो जब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, मतलब स्टूडेंट्स कोई हमारे पास ही बैठा है, टीचर यहां खड़ा है एकदम पास बैठा है, तो टीचर का अट्रैक्शन क्या होगा, स्टूडेंट्स पे ज्यादा है। तो जब टीचर अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, उस स्टूडेंट्स को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इस केस में ऐसा ही हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है। एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है तो न्यूक्लियस किसके पास आता जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का ज्यादा हो जाएगा। तो लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, generally some exceptions are given, are discussed after some times, but generally we can say if we go from left to right in a period, the ionization enthalpy continuously increases. क्यों? क्योंकि लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड। लार्ज एनर्जी, हमें बाहर से उस इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और साइज कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन पर, जिसको हमें जिस इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करना है, उस पर ज्यादा हो जाएगा। और अगर ज्यादा हो जाएगा तो हमें लार्ज एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने के लिए। बट सम एक्सेप्शन इन द केस ऑफ बेरिलियम एंड बोरान एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्सेप्शन आते रहेंगे। कोई मतलब एलिमेंट्स उस रूल को फॉलो करेगा, कोई नहीं फॉलो करेगा। तो इन द केमिस्ट्री स्टूडेंट्स बोथ कॉन्सेप्ट आर रिक्वायर्ड, 60% लर्निंग एंड 40% अंडरस्टैंडिंग, और 50-50% कह सकते हो। ठीक है, 50% लर्निंग एंड 50% अंडरस्टैंडिंग, बोथ आर रिक्वायर्ड। विदाउट लर्निंग कैपेसिटी, नो सक्सेस इन केमिस्ट्री, 100% नॉट सक्सेस इन केमिस्ट्री। तो some exception in the case of beryllium and boron and nitrogen and oxygen. We can see if we go from left to right, generally ionization enthalpy decreases, already हम बता चुके हैं। लेकिन in the case of beryllium and boron, in the case of beryllium and boron,
in the case of beryllium and boron. तो अकॉर्डिंग टू रूल, अभी जो हमने रूल बताया, अकॉर्डिंग टू रूल इफ वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस. अकॉर्डिंग टू रूल बोरान हैज हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन बेरिलियम, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है. यहां एक्सेप्शन हुआ. बेरिलियम हैज हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन बोरान. व्हाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब तो तुम लोगों का हो गया है फर्स्ट टर्म वो एमसीक्यू बेस्ड, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है. होना चाहिए बोरान का आयनाइजेशन एंथैल्पी अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन हो जाता है बेरिलियम का. एक्चुअली में उसका रीजन है ये, दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4, 1s2 2s2 एंड एटॉमिक नंबर 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1. तो दोज सबसेल which are filled are fulfilled, which are half filled are fulfilled. Those subcell which are half filled are fulfilled behave as most stable. जो सबसेल ना आधे भरे होते हैं या पूरे भरे होते हैं, वो क्या होते हैं? ज्यादा स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं. और इन द केस ऑफ बेरिलियम ऐसा ही हो रहा है. देखो ये क्या है, ये पूरी यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ चुके हो. यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. एक ऑर्बिटल होता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स. या तो ये 2 भरा हो, पूरी तरीके से भरा हो, हमने कहा फुल फिल्ड हो, या तो हाफ फिल्ड हो, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन भरा है. दोनों कंडीशन में क्या होगा? स्टेबल होगा. तो ये जो एस ऑर्बिटल है फुली फिल्ड, फुलफिल्ड है, इट मींस इट इज मोस्ट स्टेबल. ये क्या हो गया? मोस्ट स्टेबल. ठीक. और बोरान में क्या है? लास्ट वाला देखो, ये p ऑर्बिटल है. p में p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3. तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट. तो ये क्या है? न तो आधा भरा है न तो पूरा भरा है. नाइदर हाफ फिल्ड आर फुलफिल्ड, नाइदर हाफ फिल्ड आर नार फुलफिल्ड. इट मींस मतलब p में मैक्सिमम कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन. या तो 6 इसमें फिल हो, या तो 6 का हाफ 3 फिल हो. तो ये क्या हुआ? लेस स्टेबल हुआ, लेस स्टेबल. तो लेस स्टेबल और मोस्ट स्टेबल. अब ये तुम ही लोग बताओ, मोस्ट स्टेबल से ज्यादा एनर्जी लगेगी, मोस्ट स्टेबल से इलेक्ट्रॉन पुल आउट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी कि लेस स्टेबल से? जैसे कोई हेल्दी पर्सन हो और कोई वीक पर्सन हो, तो उसको वो क्या नाम है, मारने के लिए समझ लो, किसमें ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी? जो ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा स्टेबल है. तो सेम सिचुएशन यहां है. ये क्या है? मोस्ट स्टेबल है. तो मोस्ट स्टेबल है इसका मतलब पावरफुल है. तो टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बोरान एटम मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. इफ मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड then the ionization enthalpy of beryllium is higher than that of boron. बोरान में क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट सबसेल है वो न तो फुलफिल्ड है न तो हाफ फिल्ड है. कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. मैक्सिमम 6 होते या तो 3 होते. फुलफिल्ड होता या हाफ फिल्ड होता तो लेस स्टेबल. तो लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मच लोअर देन दैट ऑफ बोरान. इसी वजह से बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज्यादा हो जाती है किससे? बोरान से. सेम सिचुएशन इन द केस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. सेम सिचुएशन इन द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो इसको आप खुद करना. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जैसा हमने बताया है कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और फुल फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे आप नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का खुद कर सकते हो. एनी कंफ्यूजन इसमें? व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द ग्रुप एंड पीरियड? एनी कंफ्यूजन? Okay students, now we proceed
first ionization enthalpy and second ionization enthalpy. Now we proceed to first ionization enthalpy and second ionization enthalpy. If one electron is removed from the outermost cell, the energy required is known as first ionization enthalpy. जब किसी आउटर मोस्ट सेल से आप एक इलेक्ट्रॉन पुल आउट करोगे तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी. अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सपोज दैट सपोज दैट इन सोडियम एटम, सोडियम एटम से जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिए, सोडियम एटम चेंज इनटू आयन, सोडियम एटम चेंज इनटू आयन, दैट इज सोडियम प्लस आयन. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. But we remove, for the second ionization enthalpy, we remove the electron from the cation, not in the atom. ये ध्यान देना आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव कहां से किया जाता है? एटम से. तो एटम कन्वर्टेड इनटू आयंस. अब जब हम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रिएट करेंगे या सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो क्योंकि एटम चेंज हो गया आयन में, तो अब हमें इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना होगा? कैटायन से. और एक चीज तुम लोग जानते हो कि कैटायन से रिमूव करना इलेक्ट्रॉन इज मोर डिफिकल्ट. इट मींस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स. व्हाई? in sodium atom proton is 11, electron is 11, but in the sodium ion proton is 11 but electron will be 10. तो प्रोटॉन 11 मींस पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन 10 है. तो जब पॉजिटिव चार्ज स्ट्रांग होगा, और पॉजिटिव चार्ज होता कहाँ है? न्यूक्लियस में. तो जब न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज स्ट्रांग होगा तो एक फार्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू. अगर चार्ज ज्यादा होता है तो फोर्स क्या होता है? ज्यादा होता है. अब फोर्स किसका ज्यादा हो जाएगा? न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा हो जाएगा. अब जब न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी. तो कैटायन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? डिफिकल्ट है. लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड बिकॉज इन द कैटायन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकम मोर. जो कैटायन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज्यादा हो जाता है, जिससे हमें लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैटायन. सो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी is always greater than first ionization enthalpy. Second is greater than first, third is greater than second. Clear? Is it clear? तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इसका आंसर देख लो. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. For the second electron enthalpy, second ionization enthalpy, electron removes from cation. इलेक्ट्रॉन को हम कहां से रिमूव करते हैं? कैटायन से. और इन द कैटायन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिकम मोर, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, सो लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स. इज इट क्लियर?